Hello students, this is Smriti from Unix Publication and I am back with new chapter from your subject Math Master. How are you all? I hope you all are doing good. So your second chapter is number 0 to 20. So children, as you can understand from the name of the chapter number 0 to 20. So आज हम number 0 to 20 के बारे में उनके नेम्स इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टू अ चैप्टर. सो लेट्स वार्म अप सम क्वेश्चंस. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. सो आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखिए और जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनका आंसर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गर्ल्स कैन यू सी. तो आपको यहाँ कितनी गर्ल्स दिख रही हैं इस पिक्चर में? तो 1 and 2. How many girls? 2 girls. Count the number of ducks in the pond. यानी जो हमारा pond दिया है इसमें कितने ducks हैं? तो first 1, 2, 3, 4 and 5. तो how many ducks? 5 ducks. Good. How many balls are there in the garden? अब आपको ये देखना है कि कितनी बॉल्स दी हुई हैं पिक्चर में. 1, 2, 3. तो कितनी बॉल हो गई? 3. वेरी गुड. सो एज यू कैन सी, हमने अब तक आपने जो भी पढ़ा होगा काउंटिंग 0 to 10 की थी और आपने उस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस को देख के आंसर किया. ठीक है, अब वी आर मूविंग टू आवर टॉपिक. So read it loud. Here is a poem. You have to read it loud. First, 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. So, we have to read it again. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right. Okay, so now moving to our next topic, number and number names from 1 to 10. So here is given some pictures which we have to count and then read the number and their name. So this is 1, and how we write 1 in numeral form? It's 1. And number name O-N-E 1. Next 1 and 2. So here it is written 2. T-W-O 2. 1, 2, 3. Numeral form 3. T-H-R-E-E. This is 3. 1, 2, 3, 4. 4. F-O-U-R 4. 1, 2, 3, 4, 5. Numeral form 5. F-I-V-E 5. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numeral form is 6. S-I-X 6. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numeral form is 7. S-E-V-E-N 7. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numeral form 8. E-I-G-H-T 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Numeral form 9. N-I-N-E 9. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numeral form 1, 0, 10 and T-E-N 10. Okay, so now you all understand
how to read the number names and how to read the number. Okay? So, moving forward. Now, today we understand the concept of zero. That zero is a number. You all have heard. आप सबको पता होगा कि जीरो एक नंबर है जिसके बारे में आपने सुना होगा. तो उसके बारे में आज हम जानेंगे. कैसे? Let's understand the concept of zero. Rita had 4 chocolate. ये गर्ल जो यहाँ पे है आप देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? रीता. इसके पास कितनी चॉकलेट है? 1, 2, 3 and 4. How many chocolates? 4 chocolates. She gave 2 chocolates to her sibling. उसने क्या किया? 2 चॉकलेट अपनी सिबलिंग को दे दिया. कितनी दी? 1 and 2. So how many chocolates are left? अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची? अगर उसके पास 4 चॉकलेट्स हैं, उसने 2 चॉकलेट अपने सिबलिंग को, अपने भाई को दे दिया, तो कितनी बची? Yes, 2 chocolates. As you can see in her hand, she have 2 chocolates. So you have to write it here, 2. Next, she gave 1 chocolate to her friend. उसने क्या किया कि 1 चॉकलेट अपने फ्रेंड को दे दिया. ठीक है? फिर अब जब उसके पास कितनी बची थी? 2 चॉकलेट्स बची थी. अब जब उसने 1 अपने फ्रेंड को दे दिया तो उसके पास कितनी बची? 1. तो कितनी बची? 1. Now she ate the last chocolate herself. अब उसने क्या किया? जो 1 चॉकलेट उसके पास बची थी उसने उसे खा लिया. अब उसके पास कितनी? Can you answer how many chocolates is she left with? अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची? उसके पास 4 चॉकलेट्स थी. 2 उसने अपने सिबलिंग को दे दी, 1 अपने फ्रेंड को दे दिया और 1 वो खुद खा गई. तो अब कितनी चॉकलेट्स बची उसके पास? 0. Yes. She is left with no chocolates, which means she is left with 0 chocolates. Very good. So, अब उसने क्या किया? उसने जब चॉकलेट खा ली तो उसके पास कितना बचा? 0. Yes. और 0 को हम कैसे लिखते हैं? Like this. This is 0. This is 0. Okay, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. मान लीजिए आपके पास 2 पेंसिल हैं. ठीक है? तो आपकी मम्मी जब आप स्कूल जा रही थी या जा रहे थे तो आपकी मम्मी ने आपको एक पेंसिल दी. ओके? आप वो पेंसिल आपसे स्कूल में खो गई. अब जब आप घर वापस आए तो आपने मम्मी से कहा कि जो दूसरी पेंसिल बची हुई है वो आपको दे दे. तो अब मम्मी ने क्या कहा कि जो आपके पास जो बची हुई पेंसिल थी घर पे वो आपके भाई या बहन को उन्होंने दे दी. तो अब आपके पास कितनी पेंसिल बची? 0. वेरी गुड. कितनी पेंसिल बची? 0. यस. सो दिस इज हाउ वी काउंट. वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ 0. नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? अब हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम अच्छी तरीके से समझ पाए. ओके? सो फिल द मिसिंग लेटर्स इन द नंबर्स नेम. अब इसमें जो भी लेटर मिसिंग है उसे हमें लिखना है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? 4. As you can see, F is already given and now we have write O-U-R. 4. So इसके लिए आपको फिल करने के लिए आपको पहले नंबर नेम्स, उनकी स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए. ओके? So now we write. What is written here? Yes, it is 5. So F is already given. Now we fill F-I-V-E. This is 5. Now moving to our next number. This is 8. Very good. So E is already given. I, G, H and T. Very good. Now moving to our next number. What is written here? This is 6. So what is the spelling of 6? S is already given. We have to fill S, I and X. Very good. Next, moving to next number. This is 9. So N is already given. We have to fill N, I, N, E. This is 9. Okay. Next, what is written here? Yes, this is 1.
So O is already given. We have to write O-N-E. This is 1. Now which number is this? 7. So S is already given. Now S-E-V-E-N. 7. Next, what number is this? This is 3. So what we have to write? T-H-R-E-E. This is 3. Okay? So all you have understand? Very good. So next, count the following. Write their number and number names. What we have to do? Here are some fruits are given. We have to write the number and the name. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम काउंट करेंगे, उसके बाद यहाँ नंबर लिखेंगे और यहाँ उसका नेम लिखेंगे. ओके? So first of all, we have to count. So this is 1 and this is 2. So what we have to write here? 2. Very good. So name T-W-O. 2. Very good. 1, 2, 3. So this is 3. T-H-R-E-E. This is 3. Next, 1, 2, 3, 4, 5. We have to write here 5. F-I-V-E. 5. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What number is this? 7. We have to write here S-E-V-E-N. This is 7. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many strawberries are there? 8. So we have to write here 8. E-I-G-H-T. 8. Next, 1, 2, 3, 4. How many lemons? 4. We have to write here F-O-U-R. 4. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many watermelons are there? Pieces of watermelons. 6. So we have to write here S-I-X. 6. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now we have to write here 9. And the number name of 9 is N-I-N-E. This is 9. So we have to count here the fruits that are given, then write the number and their name. So moving forward. Now these are the numbers that are given from 1 to 11 to 20. So these are the numbers that are given from 11 to 20. So number and number names from 11 to 20. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नंबर दिए हुए हैं, उनका नाम दिया हुआ है और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो कहाँ से शुरू है? 11 to 20. ओके? सो सबसे पहले हम क्या रीड करेंगे? सबसे पहले हम जो पिक्चर्स गिवन है उन्हें हम काउंट करेंगे. उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसका न्यूमरल फॉर्म देखेंगे. उसके बाद उसका नंबर नेम हम पढ़ेंगे. ओके? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 1, 11. What is this? How many objects are there? 11. So the numeral form of 11 is 1, 1. And this is 11. So spelling of 11 is
11. 11. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. How many penguins are there? 12. So, how we write 12? 1, 2, 12. And the spelling of 12 is Twelve. 12. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and now 13. So how we write 13? 1, 3, 13. Thirteen. 13. Now moving to our next numbers. First we have to count. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and now 14. So how we write 14? 1, 4, 14. And the name of 14 is Fourteen. 14. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, now 15. So how many penguins? 15. How we write 15? 1, 5, 15. And the spelling of 15 is Fifteen. 15. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, now 16. So how we write 16? 1, 6, 16. The spelling of 16 is Xixteen. 16. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So how we write 17? 1, 7, 17. And the spelling of 17 is Seventeen. 17. Good. Moving to our next number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So how we write 18? 1, 8, 18. Eighteen. 18. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and now 19. So how we write 19? 1, 9, 19. Nineteen. This is the spelling of 19. Next, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So how we write 20? 20. And the spelling of 20 is Twenty. 20. So these are the numbers from 11 to 20 with their names. Okay. So moving to our next, write in words. So here are some numbers given to you. Now you have to write in words. So first of all, when you are writing the numbers with their names, you have to learn the spelling of the numbers. Like this is written 1, 1, 11. This is written 1, 1,
11. So you have to learn the spelling of 11, then you will write it correctly. Okay? So the spelling of 11 is E L E V E N. This is 11. Now 19. Which number they make? They make 19. Very good. So the spelling of 19 is N-I-N-E-T-E-E-N. 19. So which number is given there? Yes, this is 8. E-I-G-H-T. 8. Moving to our next number, that is 20. So 20, T W E N T Y. This is 20. So next number is 7. So spelling of 7 is S-E-V-E-N. 7. Moving to our next number, 13. Which number they make? 13. Very good. So the spelling of 13 is T-H-I-R-T-E-E-N. 13. So these are the numbers and this is their names. So moving forward, write the numbers 1 to 20. So here, as you can see, the number 1 is given at the first and 20 is given at the last. So you have to write the middle numbers from 1 to 20. So after 1, we write 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last number is 20. So students, after this, write the missing numbers. So what numbers are given? We have to write the missing numbers. So the first number that is given is 4 and after 4, 5. Then 6, 7 and after 7 what is written here? 8. Then 9, 10, 11, 12 is already written. Then after this 13, 14, next 15 is written. Then we have to write 16, 17, 18 and 19. All these activities that you are doing it will help you to understand or learn the number from 0 to 20. Okay? Moving to next. Okay students. Now we will learn the 2 places numerals. What we will learn? 2 places numerals. So let's see what is 2 places numerals are. So look at the numbers. The numbers that are given, just look at them. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the numbers. Only one place is used to write these numbers. We can say these numbers are in the ones place. So जब भी हम numbers लिखते हैं, counting लिखते हैं, तो अगर हम counting लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब ये जो numbers है ये single number है. ये क्या number है? Single है.
यानी इनको लिखने में हमें सिर्फ एक ही प्लेस की जरूरत पड़ी, तो वो क्या है, वंस प्लेस हो गया। सो ये क्या हो गया, वंस प्लेस हो गया। जैसे कि आप जब अपनी मैथ्स की कॉपी में नंबर्स लिखते हैं तो टीचर क्या कहती हैं कि कुछ ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं आपकी कॉपी में, आपने देखा होगा, ऐसे स्क्वायर्स छोटे छोटे बने होते हैं ना, ऐसे। तो टीचर आपसे क्या बोलती है कि जो भी नंबर लिखिए आप एक ब्लॉक में एक ही नंबर लिखेंगे। तो जब आप 1 2 3 लिखते हैं तो आप एक ब्लॉक में एक ही नंबर लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं आप, लाइक दिस। सो जब भी हम 1 to 9 नंबर लिखेंगे तो हमें एक ही प्लेस की जरूरत होती है लिखने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये वंस प्लेस पे है। ठीक है, ये क्या है, वंस प्लेस पे है। ओके, बिकॉज ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, ये क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है। ओके, फिर we need two places to write 1 and 0 in the number 10. अब जब आप 9 के बाद जो नंबर आता है उसे हम क्या कहते हैं, 10। तो 10 में कितने नंबर्स होते हैं, 1 and 0। ये कितने हो गए, 2 डिजिट्स हो गई। कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई। यानी 1 को लिखने के लिए हमें सिर्फ एक डिजिट लगा और 2 को लिखने के लिए हमें 2 डिजिट लग गए, यानी 2 प्लेसेस लग गई। लाइक जब आप मैथ की कॉपी में 10 लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर, लेट्स सी फर्स्ट, जैसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं मैथ्स की कॉपी में। तो जब आप ये 1 to 9 नंबर लिखते हैं तो आपको एक ब्लॉक में एक ही नंबर लिखने को आपकी मैम कहती है। ओके, तो जब आप यहाँ 1 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, एंड नाउ जब आप 3 लिखेंगे, जब आप 2 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और 3 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, वंस प्लेस। फिर वी नीड 2 प्लेसेस टू राइट 1 and 0 इन द नंबर 10। अब जब हमें नंबर 10 लिखना होता है तो हमें 2 प्लेसेस चाहिए होती हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर 10 जब हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1 and 0, 1 and 0। इसमें कितने डिजिट्स हुए, 2 डिजिट्स हुए, यानी 2 नंबर्स हुए, ठीक है। 1 आ गया और 0 आ गया। तो अब हमें 10 को लिखने के लिए यहाँ कितने ब्लॉक्स की जरूरत पड़ेगी, 2। तो यहाँ 1 and 0। This is how we write 10. Okay, the place on the right where 0 is written is called ones place, and the place on the left where 1 is written is called the tens place. अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे 10 लिखा हुआ है, तो जो इसके राइट पर है, यानी 0 इसके राइट पर है, इसे हम क्या कहेंगे, वंस प्लेस। और जो लेफ्ट में है उसे हम कहेंगे टेंस प्लेस, यानी 1 जो है वो टेंस प्लेस पे है। सो 10 इज द 2 डिजिट नंबर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 न्यूमरल्स 1 and 0। यानी 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है क्योंकि ये 2 न्यूमरल से बना है, 1 और 0 से। ओके, सो दिस इज हाउ वी राइट। सो 10 में कितने न्यूमरल्स हैं, 1 and 0। तो इसको हम ऐसे भी तो पढ़ते हैं, जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो इसे ऐसे पढ़ते हैं, 1 0 10। ओके, सो 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें 2 न्यूमरल्स लगती हैं और इसीलिए इसमें 2 प्लेसेस हैं, दैट आर 0 at ones place and 1 at tens place. Okay, building the numbers 10 to 20, यानी बिल्डिंग द नंबर्स 10 to 20। काउंट एंड राइट, अब हमें इसे काउंट करना है और यहाँ पर हमें टेंस और वंस लिखना है। सॉरी, द एस आर मिसिंग, यानी हमें टेंस और वंस लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, काउंटिंग से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हियर इट इज रिटन 10। तो 10 जब लिखा हुआ तो 10 के साथ 10 plus 0, यानी 1 0 10। तो यहाँ वंस प्लेस पे क्या आएगा, 0, एंड टेंस प्लेस पे क्या आएगा, 1। ऐसे ही मूविंग टू आवर नेक्स्ट नंबर, दिस इज अ बंडल ऑफ पेंसिल विच हैव 10 pencils, देन 10 and 1
टुगेदर मेक 11. यानी 10 के साथ जब हम 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 11. ओके, तो 1 प्लेस पे क्या आएगा 1 एंड 10 प्लेस पे क्या आएगा 1. एंड द स्पेलिंग ऑफ 11 इज ELEVEN. वेरी गुड. So moving forward, now count these pencils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now 11 and 12. So what number they make? They make 12. So in 12, what are the numbers? That is 1 and 2. So what we write at the 1's place? 2. And the 10's place? 1. Next. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. How many pencils? 13. So how we write 13? 1, 3, 13. You can see it is written here. So then what we write at the 1's place? 3 and at 10's place? 1. Means 10 plus 3. 10 plus 3 makes 13. Moving to next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. A bundle of 10 pencils plus 4 make 14. What they make? 14. That is written here. As you can see, 10 plus 4 is equal to 14. Okay. So what we write at the 1's place? 4. And at the 10's place? 1. And the spelling of 14 is FOURTEEN. 14. Next, 10 bundles of 1 bundle of pencil which have 10 pencils, and then 1, 2, 3, 4 and 5. So what is written here? 10 plus 5 is equal to 15. So what we write at the 1's place? 5, and at the 10's place? 1. This is tens. Write in your book too. Okay. And the spelling of 15 is FIFTEEN. 15. So moving to next number. A bundle of 10 pencils. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. So a bundle of 10 pencils means 10 plus 6 makes 16. What it makes? 16. So what we write at the 1's place? 6. And at the 10's place? 1. Okay. And the spelling of 16 is SIXTEEN. 16. Next. A bundle of 10 pencil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 10 plus 7 is equal to 17. So what we write at the 1's place? 7, and at the 10's place? 1. The spelling of 17 is SEVENTEEN. 17. Moving to our next number. A bundle of 10 pencil, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many pencils? 8. So 10 plus 8 is equal to 18. What they make? 18. So at the 1's place, 8, and at the 10's place, 1. Very good. So bundle of 10 pencils, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. How many pencils? 9. So 10 plus 9, it's 19. 10 plus 9, 19. So what we write at the 1's place? 9, and the 10's place? 1. And the spelling of 19 is NINETEEN. 19. So here a bundle of 10 pencils, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here should be a bundle of 10 pencils also. So what we write here? Oh, this is written. This is not correct. We have to write here 20. 20. And this is also wrong. This is, sorry for the mistake. 20 plus 0. Sorry for that. So what we write at the 1's place? 0, and at the 10's place
2. So here are the numbers that have 2 places or 2 numerals, okay, which is tens and ones. So moving forward, the abacus shown below, 2 beads on the 1 spike and 1 bead on the 10 spike. It shows the number 12. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो अबैकस बना हुआ है उसमें एक जो 1 स्पाइक है उस पे 2 बीड्स हैं और जो 10 स्पाइक है उस पे 1 बीड्स है, यानी 2 ones and 1 tens make 12, यानी 1 and 2 make 12. Similarly, 15 and 17 can be shown on the abacus as under. Okay? जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वंस वाले में 5 बीड्स हैं और टेंस वाले में 1 बीड है, तो 5 plus 10 makes 15. 1 5 15. सेम यहाँ पर कितने हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 बीड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? 7 plus 1 बीड यानी 10. तो 10 plus 7 is 17. What number they make? 17. Very good. So अच्छा, अबैकस में क्या होता है कि एक जो मैक्सिमम नंबर है स्पाइक में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीड्स होती हैं वो 9 होती हैं. कितनी होती है? 9. 4 5 6 7 8 and 9. कितनी बीड्स होती हैं? मैक्सिमम नंबर जो होता है एक बीड का वो 9 होता है. और मान लीजिए कि अगर कोई नंबर 9 से ज्यादा है तो उसे हम रीग्रुप करके टेंस वाले स्पाइक में डाल देते हैं. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. सो लेट्स प्रैक्टिस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो राइट द टेंस एंड वंस एंड राइट द नंबर. यानी जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं उनका टेंस और वंस लिखना है, उसके बाद यहाँ पर नंबर लिखना है. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 6 16 वंस. तो 16 वंस में कितने वंस होंगे? 6. और कितना टेंस? 1. तो व्हाट नंबर दे मेक? 16. वेरी गुड. नेक्स्ट 15 वंस. तो यहाँ पर हम वंस में क्या लिखेंगे? यस, 5. एंड टेंस में 1. And what number they make? 15. Yes. Next, what number is written here? 19 ones. So what number we'll write at the ones place? 9. And at the tens place? 1. So what number they make? 19. Very good. What is written here? 14 ones. So what number we write here? At the ones place? 4. And at the tens place? 1. Very good. And the number they make? 1 and 4, 14. Next, 20 ones. So what we write at the place of ones? We write at the place of 1 is 0. And at the place of tens is 2. So what number they make? 20. Very good. So moving forward, draw the beads on the abacus to show numbers. ओके, तो यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हमें अबैकस पे उसके बीट्स ड्रॉ करनी है. ओके, और यहाँ पर जो भी मिसिंग है नंबर्स वो हमें यहाँ लिखना है. ओके, सो यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है? 16. सो व्हाट वी ड्रॉ एट हाउ मेनी बीट्स आई हैव टू ड्रॉ एट द प्लेस ऑफ 1 स्पाइक? वेरी गुड. 6. सो 1 2 3 4 5 and 6. How many beads? 6 bead. And how many beads we draw at the 10th spike? Yes, 1 bead. So here is 6 ones and 1 tens. Okay. Next, what number is written here? 14. So how many beads we draw on the ones spike? Yes, 4. 1 2 3 4. How many beads? 4 beads. And at the 10th spike, 1 bead. Very good. So at the ones place we write 4, at the 10th place we write 1.
Next, how many beads we draw at the one spike? Yes, 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. How many beads? 8 beads. And how many beads in the 10 spike? 1. So what we write at the ones place? 8, and at the tens place 1. So moving to our next question, write the number and number names as shown by the abacus. यानी जो भी नंबर हमें अबैकस दिखा रहा है उसको हमें इस सर्कल में और उसके नेम को हमें इस बॉक्स में लिखना है. ओके, सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक वंस वाली स्पाइक में कितने बीड्स हैं? 3, और टेंस वाली स्पाइक में 1. यानी ये कितना हो गया? 10 plus 3, 13. Very good. So 1, 3, 13. Next, moving to next is how many beads are there in the one spike? 1, 2, 3, 4, 5. How many? 5. And at the 10 spike, 1 bead. So it is 10. So 10 plus 5, 15. Very good. And the spelling of 15 is F-I-F-T-E-E-N. This is 15. Next, how many beads are in the one spike? 2. And how many beads in the tens spike? Plus 10. Only 1 bead is there, so we will write it as 10. So 10 plus 2 is 12. And the spelling of 12 is T-W-E-L-V-E. That is 12. Okay. So moving forward. Now count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many ones in the one spike? 6. And how many beads at the 10 spike is? 1. So we'll write it as 10. So 10 plus 6, 16. Very good. And what the spelling of 16 is? S-I-X-T-E-E-N. 16. Next, how many beads in the ones spike? 4. And how many beads in the tens spike? 10. So 10 plus 4 is 14. And the spelling of 14 is F-O-U-R-T-E-N. 14. Next, how many beads in the one spike? There is no beads, so we'll write it as 0. If there is no beads in the one spike, we will consider it as 0. Very good. And how many beads in the 10 spike? 2. Then what we will write here? 2 and 0. So 2 0 plus 0 is equal to 20. Very good. So T-W-E-N-T-Y. Why we write 20 here? Like, if there is 1 bead in the tens spike, we consider it as 10. Then if it 2 beads in the ones spike, then we'll say it 20. We'll say 20. Okay. So match the pictures to the number and take the correct one. ठीक है, जैसे यहाँ पर जो भी पिक्चर्स आपको गिवन हैं उनको आप नंबर्स के साथ मैच करिए और अगर वो सही है तो आपको टिक करना है. जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many pictures are given? 12. So in this, 2 ones and 1 tens. So it will make the number 12. Very good. So what is? Then the picture is given here. It's 12 and the number it is written here 12. Then it is correct. Okay. So let's see the second one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Only 11 stars are given there. Okay. And what is written here? 9 ones, 1 tens. So
1 tens plus 9 make 19. And how many stars are there? 11. So it didn't match. So what we will do? Cross it. We will cross it. Okay. Next. Count the next stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. And what is written in the front of this? 1 tens and 1 ones. So it will make 11. So 1 10 plus 1 make 11. And how many stars are there? 19. So it didn't match. We will cross it. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So how many stars are there? 16. And what is written here? 6 ones, 1 tens. So it will make 6 plus 1 tens means 10. So it will make 16. And what is written here? 16. Yes. So this is right. We have to take it. Okay. Moving forward. Comparison of number. So the comparison of number means which number is greater, which is lesser and which is equal. यानी मैंने आपको पहले भी बताया था पहले के चैप्टर में कि कंपैरिजन में हमारे पास हमेशा दो चीजें होनी चाहिए. हमेशा दो चीजें होनी चाहिए तभी हम कंपेयर करेंगे. सो सेम हियर. यहाँ पर अगर आपके पास दो नंबर्स हैं लाइक 1 और 2 तभी ही आप यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं. तो अब हम क्या सीखेंगे? कंपैरिजन ऑफ नंबर्स इन विच लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वी विल लर्न. सो हमें हमेशा दो नंबर दिए होंगे जिनके बीच में हमें कंपैरिजन करना होगा. ओके. लुक एट दिस हंग्री बर्ड. इट इज वेरी हंग्री सो इट्स माउथ इज ओपन वाइड. यानी ये जो बर्ड है आप देख रहे हैं ये बहुत हंग्री है, बहुत ज्यादा इसको भूख लगी है इसलिए इसका मुंह खुला हुआ है. ओके. इट हैज 3 nets ऑन द साइड and 4 nets on the other, but the bird opened its mouth to eat the greater number of nuts. So it goes for the 4 nuts with its mouth open like this. Okay? So जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 nuts दिए हुए हैं और यहाँ पर वहां पर 4 nuts दिए हुए हैं और यहाँ पे 3 nuts दिए हुए हैं. Sorry for the mistake. There it has to be 4 nuts. 1 nut is missing. Okay. So the bird is very hungry. So जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उसको ज्यादा नट्स खाने हैं तो उसने जो नंबर नट का ज्यादा है उसी तरफ उसने अपना मुंह खोल रखा है like this. तो 4 क्या है? 4 क्या है? 3 से ग्रेटर है. Yes. 4 is always greater than 3. तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4 is greater than 3. Hence we write 4 is greater than 3. Okay? Because 4 is the largest amount than 3. अगर आपके पास 3 पेंसिल है और आपकी सिस्टर के पास 4 पेंसिल है तो किसके पास ज्यादा हुई? Yes, आपकी सिस्टर के पास ज्यादा हुई. आपके पास क्या होंगी? कम होंगी. Yes. So हम क्या कहेंगे? 4 is greater than 3. So moving forward, the bird turns away from the smaller number of nuts. अब उसने क्या किया कि वो smaller number of nuts से घूम गई. ठीक है. यानी इस तरफ 2 nuts हैं और इस तरफ 4 nuts हैं. Sorry for the mistake. Okay. यहाँ पर 2 नट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 नट्स दिए हुए हैं. तो उसने क्या किया कि जो स्मॉलर नंबर है उसकी तरफ से अपना मुंह घुमा के ग्रेटर नंबर की तरफ कर लिया. सो क्या हो गया? 2 इज स्मॉलर देन 4. 2 इज स्मॉलर देन 4 एज यू कैन सी. अच्छा, जैसे आपके पास 4 पेंसिल है और आपके जो भी सिबलिंग है उनके पास 2 पेंसिल हैं तो किसके पास ज्यादा हुए? यस, आपके पास ज्यादा होंगे. वैसे ही
अब इस तरफ नट्स ज्यादा है तो बर्ड ने अपना मुंह किस तरफ कर लिया, ऐसे कर लिया। अब इसका मुंह ऐसे तो खुला हुआ है, देखो ऐसे। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 smaller than 4 means we write 2 is smaller than 4. Okay, so look, now there are equal number of nuts on both the sides of the bird. The bird is confused which side to eat now. अब क्या है, इधर भी 4 nuts दिए हुए हैं और इधर भी 4 nuts दिए हुए हैं। अब क्या हो गई, बर्ड तो कंफ्यूज हो गई, अब वो किस तरफ जाएगी, किस तरफ खाएगी। इसलिए यहाँ पर हम 2 ऐसे छोटे छोटे डैशेस लगाएंगे जिसका मतलब होता है इक्वल टू, जिसका मतलब होता है इक्वल टू। Hence we will write it as 4 is equal to 4 and read as 4 is equal to 4. ओके, ये जो साइन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इक्वल। तो ग्रेटर देन का साइन क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन क्या होगा, यस। स्मॉलर देन का साइन क्या होगा, यस। और इक्वल का साइन, इक्वल टू का साइन क्या होगा, यस, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर number line. A number line is a line on which numbers are marked at intervals or gaps. Let's have a look how the number lines look. Okay, so number line क्या होता है, number line जो होती है एक लाइन होती है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं कुछ गैप पे या फिर कुछ इंटरवल पे, यानी कुछ गैप पे हम एक नंबर लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इमेज में, ये लाइन है, अब लाइन पर ये मार्क्ड है, ऐसे ऐसे डैशेस लगे हुए हैं। तो ये डैशेस क्या लगे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। ये डैशेस जो लगे हैं वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा गैप है बीच में। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिया हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वो लाइन जिसपे नंबर्स लिखे हो उसे हम क्या कहेंगे, नंबर लाइन। वो लाइन जिसपे नंबर्स लिखे हो कुछ गैप्स पे उसे हम क्या कहेंगे, नंबर लाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम सीखेंगे कि नंबर्स कंपेयर करना नंबर लाइन के थ्रू। ओके, नंबर्स कैन बी इजिली कंपेयर्ड यूजिंग अ नंबर लाइन। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ये लाइन बनी हुई है जिसपे 0 to 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, यानी 0 से लेके 20 तक नंबर लिखे होंगे, वो भी कुछ कुछ गैप पे, यानी 2 नंबर्स के बीच में गैप है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम, when 2 numbers are compared on the number line, the number nearest to 0 is smaller and the number farther from 0 is greater. तो हमने अभी पहले चैप्टर में नियर एंड फारदर पढ़ा था, नियर एंड फार। तो जो नंबर 0 के पास होगा, ओके, लाइक दिस, कंपेयर 10 and 4. ओके, 10 को और हमें 14 को कंपेयर करना है। ओके, तो जो नंबर 0 के सबसे ज्यादा पास होगा उसे हम क्या कहेंगे, वो नंबर छोटा होगा, और जो नंबर 0 से ज्यादा दूर होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि जो 10 है वो 0 के ज्यादा पास है, जो 10 है वो 0 के ज्यादा पास है। ओके, बट जो 14 है वो 0 के दूर है। So 10 is nearer to 0 and 14 is farther from 0. So 14 is greater than 10. यानी 14 हमेशा क्या है, 10 से बड़ा है। Okay? A number which is to the right of any number is greater than that number. Okay. जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 के राइट में जो भी नंबर आएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे यहाँ 6 है तो 6 के राइट में जो भी नंबर आएंगे 7 8 9 10 11, ये सारे नंबर 6 से क्या होंगे, बड़े होंगे। ओके, 9 is to the right of 6, so 9 is greater than
6, यानी 9 जो है वो 6 के राइट में है, इसलिए 9 जो है वो क्या है, 6 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 13 नंबर पे मार्क किया हुआ है और यहाँ 16 पे, तो जो 13 है वो 16 से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, a number which is to the left of any number is smaller than that number, यानी जो नंबर लेफ्ट में होगा किसी भी नंबर के, वो हमेशा उस नंबर से छोटा होगा। ओके, जैसे कि यहाँ 15 लिखा हुआ है और ये मार्क्ड है 6 पे, तो 6 जो है वो 15 के राइट में आ रहा है, 15 के राइट में आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लीजिए मैं नंबर लाइन हूं, ओके, तो जो भी नंबर, मान लीजिए मैं नंबर 3 हूं, तो मेरे लेफ्ट में जो भी नंबर आएंगे, यानी मेरे जो लेफ्ट हैंड है इस पे जो भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, और मेरे राइट में जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, सब स्मॉलर होंगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना सीखेंगे जो कि है आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। ओके, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 बच्चे हैं, 2 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। सो यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से जो रिया है वो क्या बोल रही है, आई एम स्टैंडिंग इन बिटवीन रिया एंड सैम, यानी ये वाली जो गर्ल है वो क्या बोल रही है कि वो रिया जो कि ये लड़की है और सैम जो ये बॉय है उसके बीच में खड़ी है। और सैम क्या है, सैम इज स्टैंडिंग बिफोर मी, यानी ये जो बॉय है वो इस गर्ल से पहले खड़ा है, और जो रिया है, रिया इज स्टैंडिंग आफ्टर मी, यानी जो रिया है वो इस लड़की से बाद में खड़ी है। ओके, अब जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर 4, 5 और 6 लिखा है, तो 5 क्या है, वो 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो बीच में जो नंबर आएगा इसे हम क्या कहेंगे, बिटवीन, इसे हम क्या कहेंगे, बिटवीन। और अब जो 5 से पहले जो नंबर आ गया, 5 से पहले को हम क्या कहेंगे, बिफोर, और 5 के बाद जो नंबर आएगा उसे क्या कहेंगे, आफ्टर। ओके, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, और बिटवीन का मतलब बीच में। लाइक जैसे मेरा जो ये दोनों हैंड है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो मेरी बॉडी जो है वो क्या है, मेरे 2 हैंड्स के बीच में है, मींस मेरी जो बॉडी है वो क्या आ रही है, 2 हैंड्स के बिटवीन में है। और जो मेरा राइट हैंड है वो क्या है, वो बिफोर हो गया, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो क्या हो गया, आफ्टर हो गया। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ओके, अब हम नंबर लाइन की हेल्प से सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई नंबर 3 है जो कि मार्क्ड है, और ये 4 है मार्क्ड है, और ये 2 मार्क्ड है, तो जो 2 है वो हमेशा 3 के पहले आएगा, जो 2 है वो हमेशा 3 के पहले आएगा, और 4 जो है वो हमेशा 3 के बाद में आएगा। मींस जब भी हम 1 2 3 लिखते हैं तो हम कभी 1 के बाद 3 तो लिखते नहीं है, हमेशा 2 लिखते हैं ना, तो 1 के बाद 2 आया, मींस 3 के पहले हमेशा क्या आएगा, बिफोर में 2 आएगा, और 3 के बाद में हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, और जो 3 है वो हमेशा 2 और 4 के बीच में रहेगा, यानी इन बिटवीन रहेगा। बिटवीन मतलब बीच में, बिफोर मतलब पहले, और आफ्टर मतलब बाद में। वेरी गुड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब प्रैक्टिस करेंगे हम जो भी हमने पढ़ा है, ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। सो राइट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल इन द बॉक्स, यानी 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, यानी ग्रेटर देन है दूसरे से, कौन सा नंबर दूसरे से स्मॉलर देन है,
और कौन सा नंबर इक्वल है. सो 6 इज ग्रेटर देन 8 और स्मॉलर देन 8. यस, 6 इज स्मॉलर देन 8, यानी 8 इज ग्रेटर देन 6. नेक्स्ट, 4 is smaller than or greater than? Yes, 3 is smaller than 4. Now 11 is greater than 9 and 8 is greater than 4. Next, अब दोनों साइड में 10 दिया हुआ है. So 10 equals to 10. Very good. अब क्या होगा? 18 is greater than 17, यानी 17 is smaller than 18. Next, 15 is greater than 13. 9, 11 is greater than 9. Now 9 is smaller than 14. 15, 13 is smaller than 15. 19 is equal to 19. Next, 20 is greater than 15. Next, 20 is greater than 15. Okay. So next, 16 is greater than 6. Now we will see 16 is greater than 6. 19 is smaller than 20. 12 is greater than 11 and 11 is greater than 7. Take the greatest number and cross the smallest number. यानी जो नंबर ग्रेटेस्ट है, जो बड़ा है, उसे टिक करना है और जो स्मॉलेस्ट है उसे क्रॉस करना है. So 20 is the greatest number, 15 is the smallest number. So 17 is the greatest number and 6 is the smallest number. Next, 16 is the greatest number and 11 is the smallest number. So moving to our next question, write the smallest number. यानी आप इन बटरफ्लाइज में कुछ नंबर्स देख रहे होंगे. सो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हमें सर्किल में लिखना है. ओके, सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है इसमें? 9. नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 4 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0. राइट द ग्रेटेस्ट नंबर. अब इन फ्रूट में आप देख रहे होंगे कुछ नंबर्स दिए हैं. जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हमें इस सर्कल में लिखना है. सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 20. नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट नंबर इज 19. नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज 19. वेरी गुड. सो मूविंग फॉरवर्ड, फिल इन द ब्लैंक स्क्वायर. यानी अब जो लिखा हुआ है इस हमें ब्लैंक में लिखना है, नंबर फिल करना है. ओके, सो 9 इज जस्ट बिफोर. 9 किस नंबर के पहले आता है? बिफोर मतलब पहले, तो 9 किस नंबर के पहले आता है? 10. वेरी गुड. 7 इज जस्ट आफ्टर. 7 किस नंबर के बाद में आता है? आफ्टर मतलब बाद में, तो क्या होगा? 6. गुड. 2 इज बिटवीन. 2 किन नंबर के बीच में आता है? यस, 1 एंड 3. वेरी गुड. 2 इज जस्ट बिफोर. 2 किस नंबर के पहले आता है? किस नंबर के पहले? 3. 7 is just after 6. 5 is in between. 5 कौन से नंबर के बीच में आता है? 4 and 6. Very good. Next, 11 is just before. 11 किस नंबर के पहले आता है? 10. 15 is just after. 15 किस नंबर के बाद आता है? 40. Very good. Write the numbers between 3 and 6. यानी 3 और 6 के बीच में कौन से नंबर आएंगे वो हमें लिखना है. तो 3 और 6 के बीच में क्या आएगा? 4, 5. नेक्स्ट,
6 and 10 के बीच में 7, 8 and 9. Next 7 to 11, 8, 9 and 10. Next 8 to 12. So after 8 what comes? 9, 10 and 11. Next 12 and 15. What numbers come between 12 and 15? 13 and 14. Good. 15 and 18, 16, 17. Next 17 and 20. 17 से 20 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं हमें वो लिखने हैं, दैट इज 18 and 19. Next 13 and 17. The numbers are 14, 15, 16. Next 14 and 17. Then 15 and 16. 16 and 19. 17 and 18. Okay. So moving forward. Now we will learn the topic ordering numbers. ऑर्डरिंग नंबर्स का मतलब होता है कि हमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन्हें या तो हम असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए नंबर यानी कम से ज्यादा की ओर लिखेंगे, या फिर जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ज्यादा से कम की ओर लिखेंगे. मीन्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग का मतलब है कि छोटे नंबर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 like this we are moving. So increasing का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना. increasing का मतलब बढ़ना कम से ज्यादा, and decreasing का मतलब घटना यानी ज्यादा से कम. like 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो ये क्या हो गया? decreasing यानी नंबर क्या हो रहे हैं? बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं. Increasing order means arranging the number from smallest to the greatest. यानी हमें जो भी नंबर दिए गए हैं उन्हें हम छोटे से बड़े की ओर लिखें, छोटे से बड़े की ओर लिखें. और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की ओर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर का नंबर होता है कि हम नंबर्स को बड़े से छोटे की ओर लिखें. ओके. Now we'll understand from the given picture. जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर से. So ascending order यानी increasing order. So increasing order, यहाँ पे जो मंकी है वो 5 स्टेप्स दी हुई है उन पे चढ़ रहा है. तो पहले वो फर्स्ट वाली स्टेप पे चढ़ेगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. फिर उसने क्या किया, यहाँ से बनाना लिया. अब वो क्या कर रहा है, उतर रहा है स्टेप्स. तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो पहले वो 5 वाली स्टेप को उतरेगा, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को और फिर 1 को. मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी छोटे से बड़ा, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा यानी बड़े से ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. वेरी गुड. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर. यानी जो भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं उन्हें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, देन 3, देन आफ्टर 3 कौन सा नंबर आता है, यस 7, आफ्टर दैट 9 एंड देन 10. सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. ऐसे ही नीचे वाला 0, 3, 5, 7 and 8. This is increasing order. So next question is write the following number in decreasing order. यानी जो भी नंबर है उसे हमें decreasing order में लिखना है यानी greatest to smallest. So the greatest number between them is 9. Greatest number between them is 9. 9, then 6, 4, 2 and 0. This is greatest to smallest यानी बड़े से छोटा नंबर. ओके. After that 11, 10, 5, 3 and 1.
Then after 20, 18, 14, 12 and 9. So this is decreasing order and this is increasing order. Next, ordinal numbers. ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी चीज का या किसी का पोजीशन डिसाइड करते हैं या जानते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनल नंबर्स. ओके, ऑर्डिनल नंबर टेल अस द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन. ओके, यानी ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमें किसी चीज की पोजीशन या किसी और की पोजीशन के बारे में बताते हैं. Number which tell us about the order or position of objects in a collection are called ordinal numbers. जैसे कि आपकी क्लास में जब एग्जाम होता है, ओके, तो जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड और कुछ फोर्थ. ओके, तो ये क्या हो गई? ये पोजीशन हो गई. यानी आपकी क्लास में जो सबसे जिसको ज्यादा नंबर मिले हैं वो कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे. जिसको उससे कम नंबर मिले वो कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे. यस, यानी किसी कलेक्शन में जब हमें किसी भी चीज की पोजीशन का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स. लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एटसेट्रा. As you can see in the image that there are some students with the name Tina, Harry, Ria, Duke, Arya, Amir, Kiara, Dave, Myra and Ved. So the Tina is at first position and Harry is at second position. Ria is at third position, Duke on fourth, Arya on fifth, Amir on sixth, Kiara on seventh, Dave on 8th and Myra on 9th, Ved on 10th. Okay? So moving forward, color the following pictures as directed. यानी जो भी पिक्चर्स हमें यहाँ दी हुई हैं उसे हमें कलर करना है जैसा कि यहाँ कहा गया है. सेकेंड ब्लू मीन्स दीज आर सम हैट्स, यानी जो हैट सेकेंड प्लेस पे है उसे हमें ब्लू करना है. तो ये कौन सी प्लेस पे है? Yes, this is at first place and this hat as second place. तो आपको इसे क्या करना है? ब्लू कलर करना है. ओके, फोर्थ एट रेड, यानी जो फोर्थ पोजीशन पे उसे हमें रेड करना है. तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसे हमें क्या करना है? रेड. फिर जो फिफ्थ हैट है उसे हमें क्या करना है? ग्रीन. तो 1 यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ and this is fifth. So we have to color it green. Next, first green, यानी जो भी एप्पल दिए हैं उसमें जो फर्स्ट एप्पल है उसे हमें ग्रीन करना है. So this apple is green. थर्ड पर्पल, यानी ये फर्स्ट पे है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. थर्ड को हमें क्या करना है? पर्पल. और सेवेंथ को येलो. सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. सेवेंथ यानी येलो, इसे क्या करना है? येलो. Very good. Okay. Next, fill the blanks with the help of given picture. यानी हमें blanks को fill करना है जो picture यहाँ पर हमें दी हुई है. Okay. There are dash cars in total. यानी हमें काउंट करना है कि इसमें कितनी कार्स हैं. तो 1 यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. कितनी हो गई? 4 कार्स. कितनी कार्स हो गई? 4 कार्स. द ब्लू कार इज एट डैश पोजीशन. तो जो ब्लू कार है वो कौन सी पोजीशन पर है? ब्लू कार कहाँ है? ये. तो कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट. यस, वेरी गुड. द ब्लू कार इज एट फर्स्ट पोजीशन. गुड. द डैश कार इज एट फोर्थ पोजीशन. जो डैश कार है यानी ये वाली कार कौन सी है? कौन से कलर की है? ऑरेंज. ये कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे. तो व्हाट विल राइट हियर? ऑरेंज. नेक्स्ट, द डैश कार इज एट सेकेंड पोजीशन. यानी ये जो कार है कौन सी पोजीशन पे है? ये कौन सी पोजीशन है? सेकेंड. तो कौन सी कार हुई है? रेड. सो द रेड कार इज सेकेंड पोजीशन.
take the correct option. Okay, here are some pictures are given and you have to take the correct option. Okay, so first we have to count first, second, third, fourth and fifth. We have to take the fifth. Next, fourth. So first, second, third and fourth. Next, take the sixth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth. Next, look at the picture and fill the blanks with the correct answers. यानी जो पिक्चर हमें गिवन है इसको देखना है और हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें उसका आंसर हमें देना है. ओके, सो नेम द फ्रूट इन द थर्ड पोजीशन. यानी जो फ्रूट थर्ड पोजीशन पर है उसका हमें यहाँ नाम लिखना है. सो थर्ड पोजीशन पे कौन सा फ्रूट है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मीन्स एप्पल. ठीक. ओह सॉरी, यहाँ ऑरेंजेस लिखा हुआ है, ये ऑरेंज होना चाहिए. और ये क्या है? स्ट्रॉबेरी. यहाँ पे ऑरेंजेस लिखा है. सॉरी फॉर दैट. नेम द पोजीशन ऑफ द ऑरेंज मीन्स अब हमें बताना है कि जो ये ऑरेंज है इसकी क्या पोजीशन है. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सी पोजीशन है? फिफ्थ. नेक्स्ट, नेम द फ्रूट इन द फोर्थ पोजीशन. यानी जो फ्रूट फोर्थ पोजीशन पर है उसका हमें नाम लिखना है. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. यानी फोर्थ पे क्या है? पाइनएप्पल. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज द वर्कशीट. यू हैव टू solve it. Count the forwards and complete the numbers as shown on the caterpillar. Okay. यानी अब कैटरपिलर पे जो नंबर लिखा है उसे हमें आगे फिल करना है. ठीक है. So 2 is given and after that 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. In the abacus, how many? अब यहाँ पर आपको abacus दिया हुआ है तो यहाँ से आपको काउंट करना है, इन आंसर्स को फिल करना है. ओके, सो पूछा है हाउ मेनी वंस, कितने वंस है. तो वंस वाली स्पाइक कौन सी है? यस, दिस वन. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हाउ मेनी वंस? 7 वंस. हाउ मेनी टेंस, कितने टेंस दिए हुए? यस, ओनली 1. सो हाउ मेनी टेंस? 1. एंड हाउ मेनी ऑल. अब इन दोनों को मिला के कितना हुआ? तो ये दिया टेंस प्लेस पे 1 दिया हुआ है तो ये 10 हो गया. वंस प्लेस पे 7 दिया हुआ है तो ये क्या हो गया? 7. तो यानी नंबर मिलके क्या बना? 17. देन इट इज 17. द नंबर नेम इज, यानी अब जो नंबर हमने यहाँ लिखा उसका नाम क्या है? 17. SEVENTEEN 17. Which number comes just after this number? यानी अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? ये जो 17 है इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? यस, 18. Color the 6th rabbit. There are some rabbits and you have to color the 6th one. So first, second, third, fourth, fifth. Now this is 6th. So you have to color this one. Arrange the number in the decreasing order. What is the decreasing order? Yes, greatest to smallest. Very good. So the greatest number is 20. Then after that 15, 13, 11, 9, 5 and 4. Next, write the signs greater than, smaller than or equal to. Okay, so 3 plus 2 is 5 and 10 minus 5, 5. So what we will say? What we will write? Equal. Okay. 6 plus 6. 6 plus 6, 12. 8 plus 6, 8 plus 6, 14. So which is greater? Yes, 12 is smaller than 14. Then 9 minus 9, 0. And 7 minus 6, 1. So which is greater? Yes, 0 is smaller than 1.
Moving forward, take the correct answer. Take the correct ordinal number for second. यानी सेकंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हमें यहाँ टेक करना है. So the correct answer is C. Take the biggest number among 16, 11, 7 and 19. यानी जो biggest number है 16, 11 और 7 और 19 के बीच में उसे हमें टेक करना है. So which is the greatest? Yes, 19. Find the expanded form of 18. यानी अब हमें 18 का expanded form ढूंढना है. तो क्या है 10 plus 8. So which is the correct answer? A is the correct answer. So student, this is for today and we'll meet in the next chapter. Till then, bye.